Welcome back student, a brand new class of computer network. In this class, we will discuss the various topologies of network. So firstly, we start with what is topology. The term topology refers to the way a network is laid out, either physically or logically. Topologies can be referred as a geometric arrangement of computer system. Each computer system in a topology is known as node. A network topology is determined only by the configuration of connection between nodes. All the computer network rely upon point-to-point and a multi-point connection. However, the complete physical structure of the transmission media is known as or is called physical topology, or a topology. It defines the arrangement of node, cable, and that make up the network. In other words, we can say that a topology is the systematic description of computer arrangement or a network arrangement connecting various nodes that are sender and receiver through a line of connection. A computer network topology is a arrangement with which computer system और नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. बेसिकली क्या होगा ना, नेटवर्क टोपोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं. देखिए, अगर मैं 2 कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ, 3 कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ, या एक पूरी लैब या एक पूरा ऑफिस कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई एक आर्किटेक्चर जो होता है तैयार करना पड़ता है. तो बेसिकली वही फिजिकल और लॉजिकल आर्किटेक्चर जो है वही मेरा क्या काउंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी. सो हेयर वी आर types of topology. The first one is bus topology. A bus topology is such that there is a single line to which all the nodes are connected. It is usually used when a network installation is small, simple or temporary. A bus physical topology is one in which all devices connected to a common shared cable. A physical cable or a physical bus topology network typically uses a one long cable called a backbone. A computer that includes workstation and server are attached directly to the backbone using some connector. The backbone is terminated at the both ends to remove the signal from the wire after it passes all devices. Most bus topology allow electric or electromagnetic signal to travel in both direction. बेसिकली होता क्या है ना, जो बस टोपोलॉजी है हमारे पास सिंपल है. अगर एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हमारी एक बस होती है, नॉर्मल एक ट्रैवल करने वाली बस होती है, सेम वैसी ही होती है. सारे जैसे बस में क्या होता है, सारे की सारी सीट्स लगी होती हैं और उसमें 2 ही जगह होती हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, एग्जिट और एंट्री. तो सेम इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक लॉन्ग केबल के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और दोनों एंड पे हम क्या करते हैं, एक कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं जो कि मुझे बताता है कि यहाँ से मेरा कनेक्शन जो है शुरू हुआ है, यहाँ से मेरी टोपोलॉजी जो बस के कंप्यूटर्स हैं या जो नोड्स हैं वो यहाँ से शुरू हुई हैं और यहाँ जाके जो है ख़त्म हो गई हैं. बेसिकली इस टोपोलॉजी को हम यूजली यूज़ करते हैं जहाँ पे मैंने थोड़े टाइम के लिए अपना नेटवर्क तैयार करना हो. लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो वहाँ पर मैं इस टोपोलॉजी को यूज़ कर सकता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम इस टोपोलॉजी से ये आती है कि अगर मैंने मल्टीपल कंप्यूटर अटैच करने हैं तो मुझे मल्टीपल कंप्यूटर्स में मल्टीपल पोर्ट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने नेटवर्क केबल तो कंप्यूटर में लगानी ही है ना, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस तो कोई है नहीं है. तो वो चीज़ आ जाती है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस सिस्टम में, बस टोपोलॉजी में. सो हेयर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. द आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड लीनियर, easy to install and cheaper than when it compared to other topologies. Our nodes are connected directly, so a very short cable length is required. Bus topology can be extended easily in on either side. बेसिकली क्या है, एक सिंगल नोड के साथ सारी की सारी चीज़ें अटैच की होती हैं हमने, तो मतलब सिंपल है, इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होती है. अगर मुझे नया कंप्यूटर ऐड करना है तो मैं ये तो स्टार्टिंग में करूँगा या एंड में, बीच में मैं कभी इंस्टॉल ही नहीं कर सकता हूँ या उसमें कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत आसान होता है. जो हेयर सम आर डिसएडवांटेज कैन बी यूज relatively in small network. All computer share a same bus. Reconfiguration is difficult. Fault identification is difficult. Becomes slow with increased number of nodes. The entire network shut down if there is an error occur in the main cable. Basically क्या होता है, ये चीज़ वहीं पे कामयाब है जहाँ मेरे पास छोटा नेटवर्क है. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम इसमें है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक ही केबल के साथ अटैच हुए होते हैं.
अगर एक केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो उससे बाद की जो कम्युनिकेशन है, उसके ब्रेक होने के बाद के जो कंप्यूटर्स हैं और ब्रेक होने के पहले के जो कंप्यूटर हैं, वहाँ का कम्युनिकेशन सारा के सारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरी, अगर मैं इसमें ज़्यादा कंप्यूटर ऐड कर देता हूँ तो सारा का सारा एक नोड के साथ है, तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है और नेटवर्क मेरा स्लो हो जाता है। किसी भी एक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस फॉल्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि डेटा ट्रैवल कहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लिया कि अगर मेरे सेकंड कंप्यूटर में नेटवर्क पे डेटा नहीं जा रहा है तो मैं मान सकता हूँ फर्स्ट से, लेकिन अगर मेरे 10 कंप्यूटर में डेटा नहीं, 10वें कंप्यूटर पे डेटा नहीं जा रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि पहले 9 में से किस कंप्यूटर में कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। द सेकंड वन इज रिंग टोपोलॉजी। द रिंग टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर टोपोलॉजी. Ring topology is used in high-performance network where large bandwidth is necessary. Ring topologies are wired in a circle. Each node is connected to its neighbor or either side, and the data passes around the ring in one direction only. Each device incorporate a receiver and a transmitter and a server as a repeater that pass the signal to the next device in a ring. Because the signal is regenerated at each device, signal degeneration is slow. A signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches destination. Each device in a ring has a repeater. When the devices receive the signal from another computer or other node, it just regenerates the bit and pass them along. A ring network pass a token. A token is a short message with electronic address of the receiver. Each network interface card is given a unique electronic address which is used to identify the computer on the network. बेसिकली रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना, सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग की तरह एक सर्कल में अटैच किए होते हैं मैंने। अब देखिए, जितने कंप्यूटर मैंने एक सर्कल में अटैच किए होते हैं, हर कंप्यूटर के साथ मैंने एक हार्डवेयर यूज़ किया होता है, जिस हार्डवेयर को मैं बोलता हूँ रिपीटर। बेसिकली रिपीटर का काम क्या होता है, जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को क्या करना है, बूस्ट करना है, रीजनरेट करना है। क्योंकि पिछली जिस स्पीड से आ रहा है, हो सकता है लेंथ लंबी है केवल, अगर डिस्टेंस दूर है तो सिग्नल मेरा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, लो हो जाता है। तो रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर जो होंगे एक रिंग की शेप में क्या होंगे, कन्फिगर होंगे। सो हेयर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर. एडिंग और डिलीटिंग ए न्यू डिवाइस इज ईजिली एज ओनली 2 कनेक्शन हैव to adjusted. A fault isolation is simplified. No terminator required. Suitable for optical fiber as a data flow in one direction. बेसिकली क्या होता है, कन्फिगर करना बहुत आसान होती है। ठीक है जी, एक नया कंप्यूटर मैंने डिलीट करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कि दोनों साइड से कनेक्टर नहीं लगे। इसमें कनेक्टर कोई होता नहीं है, टर्मिनेटर इसमें कोई नहीं होता है। जहाँ मैंने कंप्यूटर अटैच करना है वहाँ पे मैं कंप्यूटर अटैच कर सकता हूँ एक नया कंप्यूटर ऐड करके केबल में। अगर मुझे कोई चीज़ निकालनी है तो मैं वहाँ से मैं उसी चीज़ को आसानी से निकाल भी सकता हूँ। और दूसरी अच्छी चीज़ है कि इसमें सारा का सारा कंप्यूटर का जो डेटा फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। सो जहाँ पे मुझे डेटा एक ही डायरेक्शन में भेजना है, मुझे रिसीवर से कुछ नहीं लेना है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ जो बहुत कामयाब है। हेयर सम डिसएडवांटेज. ए ब्रेक इन ए रिंग कैन स्टॉप द टर्मिनेशन ऑफ द एंटायर नेटवर्क. डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, ऐड और रिमूव, डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क. Expensive when compared to other topology. When one computer fail, all over network is disturbed. Disrepute. बेसिकली क्या होता है, अगर केबल में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा सारा का सारा नेटवर्क ठप हो जाता है। किसी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है मेरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होती है। एक नया कंप्यूटर ऐड करने तो पूरे का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब करता है। अगर बाकी के रिंग टोपोलॉजी को अगर मैं बाकी टोपोलॉजी से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। नाउ वी हैव ए स्टार टोपोलॉजी. In star topology, each device has dedicated point-to-point link only to a central controller, usually called hub or a switch. The device is not directly linked with each other or one another, unlike the other topology like mesh topology. Star does not allow directly traffic between devices. The controller acts as an exchange. If the one device wants to send data to another, it sends data firstly controller, which then relay the data to another connected device. In star topology, electrical and electromagnetic signal travel from the network devices up to drop cable or to the hub. From
देयर द सिग्नल इज सेंड टू अदर नेटवर्क। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना, सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली ज़्यादातर हमने क्या किया होता है, इसी टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने सारे के सारे कंप्यूटरों को क्या किया होता है, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जो कनेक्ट किया होता है, उस सेंट्रल डिवाइस को हम या तो हब बोलते हैं या स्विच। बेसिकली हब पहले यूज़ करते थे, अब हम ज़्यादातर स्विच यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, जब भी किसी कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो वो डेटा फर्स्टली क्या करता है, उस ट्रांसमीटर, उस सेंट्रल डिवाइस कंट्रोलर जिसे हम हब या स्विच बोलते हैं, उसके बाद जाता है। फिर वो डेटा जो आगे नेटवर्क पे आ जाता है। कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है। डेटा जो होगा हमेशा ही जो मेरा सेंट्रल कंट्रोलर है उसके थ्रू ही क्या करेगा, आगे जाएगा। हेयर सम एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी: easy to modify and add new computer without disturbing the rest of network, less expensive than other topology like mesh topology, each device need only one link and one port, easy to install and configure, easy to diagnose network fault, a single computer failure does not affect the network, ordinary telephone cable can be used। बेसिकली क्या होता है, देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल कंट्रोलर के साथ अटैच हैं। तो अगर मुझे नया कंप्यूटर अटैच करना है तो मैं कंट्रोलर के साथ डायरेक्टली कंप्यूटर को अटैच कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्योंकि मेरा पूरे का पूरा नेटवर्क क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, खर्चीली नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेश। क्योंकि मेश टोपोलॉजी हम जब आगे बढ़ेंगे बहुत ही हौच पौच से तरीके से काम करती है। इंस्टॉल और कन्फिगर करना बहुत आसान है। डायग्नोस करना, नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है किस कंप्यूटर में फॉल्ट है। क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किसकी वजह से, एक सेंट्रल कंट्रोल। जिस कंप्यूटर से डेटा नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि इसी कंप्यूटर में फॉल्ट है। दूसरी चीज़ है कि मेरा नेटवर्क इसमें डिस्टर्ब नहीं होता अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनलेस अगर मेरे सर्वर में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर सर्वर में प्रॉब्लम आ गई या मेरे सेंट्रल कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ गई फिर तो सारा के सारा नेटवर्क क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर मोर केबल देन अदर टोपोलॉजी, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड ए न्यू नोड हैड। बेसिकली क्या होता है, अगर मेरा सेंट्रल हब जो है, जो सेंट्रल कंट्रोलर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेरा पूरे का पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर कंप्यूटर को मैंने एक सेंट्रल कंट्रोलर से अटैच करना है। तो मुझे हर कंप्यूटर, अगर मेरे पास 20 कंप्यूटर है तो मुझे 20 केबलें लगानी पड़ेंगी कंप्यूटर से कंट्रोलर तक। एक केबल से जैसे बस और रिंग में जाता है, एक केबल से मेरा काम हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं, मुझे उतनी केबल ज़्यादा करनी है, एक्सपैंड करना। अगर जितना नेटवर्क बढ़ता जाता है कंट्रोलर के ऊपर लोड पड़ता जाता है। क्योंकि देखिए एक कंट्रोलर जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंप्यूटर, जैसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं जो हमारा हब होता है 8 पोर्ट का मिल जाता है, 16 का, 24 का, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है, 20, 48, तो जितने होगा। अगर मैं ज़्यादा कंप्यूटर, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 100 कंप्यूटर अटैच करने हैं तो मुझे 2 कंट्रोलर चाहिए होंगे, 3 कंट्रोलर चाहिए होंगे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, मुझे हमेशा कंट्रोलर ऐड करने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्लीट इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी। इन मेश टोपोलॉजी एवरी नोड इज डेडिकेटेड पॉइंट टू द पॉइंट linked to every other node. It is provided a bidirectional link between each possible node. This type of a topology contains at least 2 nodes with 2 or more paths between them. Mesh topology is reversed because the failure of any computer does not bring out the entire network. In other words, we can say that the mesh topology has a point-to-point connection between every device in the network because each device requires an interface for every other device on the network. Mesh topology is not usually considered practically. बेसिकली क्या होता है ना, ये टोपोलॉजी जो है ना हम पढ़ तो लेते हैं जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई डिवाइस लगाया होता है, पोर्ट ऐड किए होते हैं, मैंने मल्टीपल हब स्विच सारे कंट्रोलर ऐड किए होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो ये टोपोलॉजी जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, कंसीडर ही नहीं करते हैं इस टोपोलॉजी को हम यूज़ करना। तो इस टोपोलॉजी को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इवन ना के बराबर हम इसे यूज़ करते हैं। So here some advantages. Mesh topology are easy to troubleshoot because each medium link is independent to other. Mesh topology resist media failure better than other topology. Excellent for long distance networking. Communication possible through alternative route if path is busy. Piracy is maintained since the message travel along the dedicated line. Here some disadvantages. The amount of cabling required is high. Installation configuration is difficult. Cabling cost is more. Basically क्या है ना, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हर डिवाइस जो है अपनी एक पर्सनल लाइन यूज़ करेगा तो फ़ायदा ही है। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन हर कंप्यूटर अपनी केबल, अपना सारा डेडिकेटेड डिवाइस यूज़ करेगा, डेडिकेटेड लाइन यूज़ करेगा, तो देखिए केबल भी ज़्यादा लगेगी,
इंस्टॉल करने में मुश्किल हो गया, खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, दिस इज द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड आर अरेंज एज ए ट्री। The function of central node is this topology may be distributed. A tree topology is an extension and variation of the star topology. It is similar to the star topology, but the nodes are connected to a secondary hub that in turn is connected to the central hub. The central hub is an active hub. The active hub contains the repeater which regenerate the bit pattern it received before sending. The secondary hub can either active or passive. A passive hub provide a physical connection between attached. बेसिकली इस टोपोलॉजी को हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज जो होती हैं इकट्ठे काम करती हैं, क्योंकि सारे के सारे इसमें एक बेसिकली एक ट्री की तरह होती है। एक पेरेंट होता है, उसके आगे चाइल्ड होते हैं, फिर जो चाइल्ड होते हैं वो पेरेंट बन जाते हैं, उनके आगे फिर चाइल्ड्स होते हैं। तो ये एक तरह से ट्री की तरह काम करती है। और देखिए, जब हम इतना सारा एक हरारगी में काम करते हैं तो मुझे सिग्नल को रीजनरेट करवाना पड़ता है। तो उस सिग्नल को रीजनरेट करवाने के लायक हमने इन प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया हमने कि हमारे पास क्या होता है, रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है, हमें से सिग्नल को क्या करना है, रीजनरेट करना है। सो द एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी सिमुलेट हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा, सो इट इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर हायरार्किकल डेटा फ्लो एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. We can easily extend the network. Extension of bus and star topology. Error detection is easily done. Here some disadvantage of this topology. Long cable is required. There are dependency on root node. If the central hub fails, the entire network breaks down. If more nodes are added, maintenance is difficult. Basically देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि ट्री टोपोलॉजी है, एक पेरेंट होता है, पेरेंट्स के साथ सारा आगे काम करता है। तो इस नेटवर्क को एक्सटेंड करना आगे होता है, क्योंकि मुझे बीच में कहीं भी नहीं, जो एक पेरेंट होगा उसी के आगे चाइल्ड ऐड करना है। जो चाइल्ड है बाद में पेरेंट बन जाता है और उसके अंदर फिर मैं चाइल्ड ऐड कर सकता हूँ। एरर जो है ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि किस नोड से जो है सिग्नल नहीं आ रहा है, मुझे बाकी नोड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पेरेंट चाइल्ड पे काम करती है कि हायरार्की पे काम करती है, तो बहुत ज़्यादा केबल जो है मुझे यूज़ करनी पड़ती है। सारी की सारी चीज़ जो होती है रूट पे डिपेंड करती है। मल्टीपल हब एंड स्विचेज यूज़ करते हैं। अगर सेंट्रल हब और स्विच ख़राब हो गया तो सारी की सारी चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर मैंने इसमें बहुत सारे कंप्यूटर ऐड कर दिए, बहुत सारे नोड ऐड कर दी, तो इसकी मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो दीज आर द टोपोलॉजीज इन विच वी डिस्कस। बेसिकली टोपोलॉजी इज़ द आर्किटेक्चर, अ फिजिकल और लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। बेसिकली हमने जो भी नेटवर्क तैयार करना होता है उसका एक आर्किटेक्चर है। लाइक हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टार, क्योंकि स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, हम स्टार टोपोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे एक सेंट्रल हब मिल जाता है जिसके साथ मैं सारा के सारा डेटा ट्रैवल करता हूँ। इन प्रैक्टिकली स्टार टोपोलॉजी इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, and it depend on situation or a system which topology we need to use. So these are the some computer topology. That's for today. Thank you. See you in next lecture. In next lecture we discuss the various computer network hardware devices like hub, switch, bridges, gateway, connector, etc. So thank